Good morning, students. I am Barusul. Today we are going to start a new topic that is nucleotides and nucleic acids. Before we start this topic, we know that all the living organisms have different lifestyles. They have different lifestyle, but ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं, वहां पे जो रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का जो रोल है, प्रोटीन्स का रोल है, अमीनो एसिड्स का रोल है, या न्यूक्लिक एसिड्स का जो रोल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में वो सेम होता है। यानी कि दीज जो मैंने जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड जो बताए हैं, मैंने जो मेटाबॉलिक प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, these are dependent on these structural components, and the structural components are similar in each and every organism. Today we begin our this survey on the biomolecules. That the topic is nucleotides, and the polymers of nucleotides is known as nucleic acids. And this is the nucleotide, and the polymers of the nucleotides is known as nucleic acids. एंड दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर न्यूक्लिक एसिड्स। अगर हम देखेंगे जो लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस जो इंसान में होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, most of the metabolic processes they are dependent on the nucleotides or nucleic acids. For example, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, that is they take part in the oxidation reaction, that is redox reactions, energy transfer reactions, intercellular signaling processes, and biosynthetic processes, that is synthesis of so many compounds, synthesis of so many molecules inside the living organ. The polymers of the nucleotides, that is nucleic acids like DNA and the RNA, are primary the primary players of the storage and transfer of the genetic information in case of living organisms. Also, अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे, these also provide the catalytic role in case of cells. अगर हम देखेंगे वहां पे जो कैटालिटिक रोल होता है और मेटाबॉलिक पाथवे में जो भी कैटालिटिक रोल होता है न्यूक्लिक एसिड्स का, एज कंपेयर टू अदर सबस्टेंस, एज कंपेयर टू अदर बायोमॉलिक्यूल्स, the role of the nucleic acids is essential, is more as compared to the other biomolecules. अगर हम इवोल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे हम इवोल्यूशन की बात भी करेंगे। यहाँ पे जो इवोल्यूशन जो होती है, एज पर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ द व्यू, the genetic information is transferred from parents to their offspring, from species to the species, where these nucleic acids, where these polymers of the nucleotides, that is DNA or RNA. And now we will start the nucleotides. That is nucleotides are the molecules that have structural diversity, that have considerable structural diversity. There are 8 common varieties of the nucleotides, each composed of the nitrogenous base linked to a sugar to which at least one phosphate group is attached. और जो यहाँ पे bases जो होती हैं, the bases of the nucleotides are planar, aromatic, heterocyclic molecules that are either derivatives of the purines or pyrimidines. Now there are the two types of the nucleotides. These are of two types, that is purines and pyrimidines. The most common purines are adenine and guanine, and the most common pyrimidines are cytosine, uracil, and thiamine. These are the two main types of the nucleotides, that is purines and pyrimidines, and the purines are of most common two types, that is adenine and guanine, and pyrimidines are of three types, that is cytosine, uracil, and thiamine. And there is a short denotation of the adenine is denoted by A, guanine is denoted by G, cytosine is denoted by C, uracil is denoted by U, and thiamine is denoted by T. After that, we will see the general structure of purines and the pyrimidines. Firstly, we will start the general structure of the purine.
This is the general structure of the purine. Here it is nitrogen, here it is nitrogen, here it is nitrogen, and here it is nitrogen. And after that, here are the alternate double bonds, and this nitrogen is attached with hydrogen. And the numbering in case of purine start from this one, from this nitrogen, that this is known as one. The numbering of the purine start from this nitrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. This is the numbering in case of the purines. You have to memorize the numbering of the purines, and you have to memorize the general structure of the purines. After that, this is the pyrimidine, the structure of the pyrimidine, general structure of the pyrimidine. Here it is nitrogen, and at this point it is nitrogen. After that, here also are alternate double bonds. Here is double bond, here is double bond, and here is double bond. But the numbering in pyrimidine is start from this nitrogen, that is from this nitrogen. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is the numbering in case of pyrimidine. If we have a look in case of pyrimidine and the purine, the numbering in this case, in case of purine, if we have a look on this is a simply that is hexagonal structure. There are the 6 points that is hexagonal structure, and the numbering in case of hexagonal structure is anti-clockwise. That is not this way. This is anti-clockwise, but on this and on this side, this is clockwise. You have to memorize it. यहाँ से हम जो स्ट्रक्चर का जो ये हम नंबरिंग देते हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड यहाँ पे हम जो देते हैं नंबरिंग, दैट इज क्लॉकवाइज. एंड इन दिस केस यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो क्लॉकवाइज होती है. पायरिटी में क्लॉकवाइज होती है, लेकिन यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो दो टाइप की होती है. पहले एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसके बाद क्लॉकवाइज होती है. लेकिन यहाँ पे इससे पहले से ही क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है, दैट इज इन केस ऑफ पायरिटीज. आफ्टर दैट वी विल सी द प्यूरिन्स के दो टाइप्स होते हैं, एडेनिन और गानिन. और एकाडेमिक पैरामिड के 3 टाइप्स, साइटोसिन है, यूरासिल है, एंड थायमिन है. हम हर एक का स्ट्रक्चर देखेंगे. स्ट्रक्चर पहले हम जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा है. उसके बाद हम देखेंगे कि प्यूरिन में एडेनिन जो होता है या गानिन जो होता है, उसमें कौन सी इनके दरमियान कौन सी डिफरेंस होती है, एकाडेमिक उन 3 के दरमियान कौन कौन सी डिफरेंस होती है, कहाँ पे क्या पॉइंट होते हैं, कहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन है, कहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल अटैच होता है. पहले फिर से प्यूरिन लेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन जो हमने अभी बनाया है वो इस तरीके से था. यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, इट वाज अटैच्ड विद हाइड्रोजन. यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन था, एंड अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स थे. नंबरिंग इस तरीके से थी, दैट इज 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 and 6 7 8 and 9. This was the general structure of the purine. Now हम यहाँ पे लेंगे हर एक स्ट्रक्चर. इसी प्यूरिन को हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे. यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है. जनरल स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे. दिस इज हियर नाइट्रोजन, हियर इट इज नाइट्रोजन, एंड उसके बाद इसको इसके साथ अटैचमेंट होती है. ठीक है. नाउ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स पहले हम यहाँ पे रखेंगे. उसके बाद क्या होता है यहाँ पे वो हम देखेंगे. यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के बदले में X लिखूंगा. ठीक है. और यहाँ पे होता है NH2, that it is attached with NH2. ठीक है. यहाँ पे NH2 होता है. उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा, अगर if X is equal to H, अगर ये X H के बराबर होगा, then it is known as adenine. The short form of adenine is AD, and the symbol is A. And if the X is equal to ribose, X is equal to ribose, then it is known as adenosine. The short form of the adenosine is ADO, and the symbol is A. After that, when the X is
ribose phosphate, then it is known as adenylate acid or adenosine monophosphate, and the short form of adenosine monophosphate is AMP. This is base formula, that is base is here pyrene, then this is the base formula, this is base, this is nucleoside, and this is nucleotide. देखो फिर से मैं बताऊंगा, दिस इज द बेस, ये बेस होता है, बेस स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ये बेस है, अगर बेस, ये बेस स्ट्रक्चर जनरल होता है, इसके बाद यहाँ पे भी बेस है, लेकिन बेस डिफर होती है, किसमें क्या होगा वो डिफर होगी, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द बेस, या हम जिसको देखेंगे दैट इज दिस इज नोन एज बेस फार्मूला, इसको बेस फार्मूला हम कहते हैं। ये बेस फार्मूला जो होती है, उसके बाद हम बेस कौन सी होती है, उसके बाद यहाँ पे अगर XH होता है देन इट इज नोन एज एडेनिन, ठीक है, देन इसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसके वक्त उस वक्त हम इसको कहते हैं दैट इज एडेनिन। अगर न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे राइबोस होगा, डेट X अगर होगा, X के बदले अगर होगा राइबोस, देन इट इज नोन एज एडेनोसिन, दैट इट इज अ न्यूक्लियोसाइड। आफ्टर दैट व्हेन X इज राइबोस फास्फेट, अगर ये X के बदले जो यहाँ पे मैंने X लिखा है उसके बदले राइबोस फास्फेट आएगा, देन इट इज नोन एज एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एडेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वो ये अभी एडेनिन का बनाया है, अब मैं गानिन का बनाऊंगा। यहाँ पे पहले मैं फिर से बेस फार्मूला वही बनाऊंगा जो मैंने पहले ही बताया है, दिस इज द जनरल बेस फार्मूला, जो बेस फार्मूला होती है वही फिर से बनाएंगे हम यहाँ पे। दिस इज द जनरल बेस फार्मूला, यहाँ पर भी एक्स लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसको अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो पहले लिखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता है, उसके बाद यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन है, and at this point this is double bond but this nitrogen attached with the hydrogen, that means this double bond is replaced। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो एलिमिनेट हो गई है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर ये एक्स, अब ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ये बेस फार्मूला का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, दैट इज पहले हमने जो यहाँ पे नंबरिंग लिखी थी, दैट इज दिस इज 1, यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे किस नाइट्रोजन अटैच विद हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पे 2 पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 2 पे अटैचमेंट होती है NH2 की, और यहाँ पे 6 नंबर पे NH2 की अटैचमेंट होती है, यहाँ पे 6 नंबर पे ऑक्सीजन की अटैचमेंट होती है। उसके बाद अगर ये एक्स हाइड्रोजन के बराबर होगा, देन इट इज नोन एज गार्निन, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ गार्निन इज GAU एंड इज डिनोटेड बाय G। अगर यही एक्स जो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, अगर आप ये एक्स राइबोस होगा, देन इट इज नोन एज गार्नोसिन, दैट इज GUO and is denoted by G। If it is this X is ribose phosphate, then it is known as guanylate acid or guanosine monophosphate or GMP। This is the structure of the purines। फिर से समझाऊंगा, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर, ये बेस फार्मूला है। उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन हमने की, अटैचमेंट कुछ यहाँ पे अटैचमेंट NH2 की होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की अटैचमेंट होती है या NH2 की अटैचमेंट होती है, दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो एडेनिन की जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ और होता है, ये गार्निन का स्ट्रक्चर वो डिफर होता है, लेकिन बेस फार्मूला कॉमन होती है एडेनिन में भी गार्निन में भी। उसके बाद जो नंबरिंग जो होती है उनपे अलग अलग किस्म के एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट होती है। यहाँ पे एक ही NH2 है, वो कार्बन नंबर वो सिंपली नंबर 6 पे होता है, दैट इज यहाँ पे कार्बन होगा, दैट इज कार्बन नंबर 6 पे है। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 6 नंबर पे ऑक्सीजन है और नंबर 2 पे NH2 की अटैचमेंट होती है। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एडेनिन एंड गार्निन। अगर हम इसको अकॉर्डिंगली
नेम देके जो एडमिन जिससे जनरल नेम, अगर हम नेम देके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होता है, इसका नाम ये होता है, दूसरा नाम इसका ये है, दैट इज इसका जनरल नेम है 6 अमीनो प्यूरिन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब है कि 6 नंबर पे है वहां पे अमीनो ग्रुप है, जनरल क्या था, प्यूरिन था। 6 पे क्या है, अमीनो ग्रुप, जनरल है प्यूरिन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर अफगानिन का है, यहाँ पे क्या है हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 नंबर पे क्या है, 2 अमीनो, 2 अमीनो। ठीक है, उसके बाद 6 पे क्या है, ऑक्सो, 6 ऑक्सो प्यूरिन है। इसका मतलब है 2 नंबर पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, 6 नंबर पे क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप है, जनरल क्या था, प्यूरिन था। दिस इज सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ द एडेनिन एंड गुआनिन। उसके बाद पायरीमिडीन है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पायरीमिडीन में यहां पे फिर से बनाऊंगा। यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे नाइट्रोजन। उसके बाद अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दूसरी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे तीसरी डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद नंबरिंग कहां से शुरू की थी हमने, क्लॉकवाइज नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6। दैट मींस नंबर 1 एंड नंबर 3 possess the 2 नाइट्रोजन्स। ठीक है, उसके बाद इसी स्ट्रक्चर को मैं फिर से यहाँ पे बनाऊंगा। यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है। इनको मैं पहले ऐसे ही रखूंगा क्योंकि दिस इज द जनरल बेस फार्मूला, ये बेस फार्मूला है। यहाँ पे भी फिर से लिखूंगा दैट इज बेस फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे ये n जो होता है x के साथ अटैच करेंगे, यहाँ पे x लिखूंगा, यहाँ पे ये O के साथ और यहाँ पे NH2 के साथ। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो एलिमिनेट होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद दिस वाज द बेस फार्मूला। उसके बाद बेस क्या होती है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड इसका क्या होता है और इसका न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस इफ x इज इक्वल टू, अगर x होगा हाइड्रोजन के बराबर, देन इट इज नोन एज साइटोसिन। CYT is the short form and symbol is C। और अगर यहाँ पे यही x अगर बराबर होगा राइबोस के बराबर होगा, if x is equal to ribose then it is known as cytidine। CYD is the short form here and C is the symbol। After that when the x is equal to ribose phosphate, जिस तरीके से हमने पहले में देखा है, then it is known as cytidinic acid or cytosine monophosphate or CMP। दिस वाज द फर्स्ट। आफ्टर दैट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दूसरा। फिर से मैं यही जनरल स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पे अपना नाइट्रोजन जो होता है वो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है वो इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं पहले जो ऑक्सीजन जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में था वो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो NH2 को इसको रिप्लेस करेंगे NH2O के साथ, और यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड थी या यहाँ पे डबल बॉन्ड, जनरल स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड थी, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड थी, वो एलिमिनेट हो गए, वो दीज आर एलिमिनेटेड। आप उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और दिस नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद x, यहाँ पर भी यही x होगा। और अगर x इज इक्वल टू हाइड्रोजन, अगर यही x हाइड्रोजन के बराबर होगा, देन इट इज नोन एज यूरेसिल। UR is a short form and U is the symbol, and x, if the x is equal to ribose, then it is known as uridine
Short denotation is URD and the symbol is U, sorry. And if this X is ribose phosphate, then it is known as utylic acid or uridyl monophosphate. That is UMP. This is the general structure of the uracil. उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं फिर से बनाऊंगा वही स्ट्रक्चर जो मैंने बेस फार्मूला बनाया, मैं अब यहाँ पे बनाऊंगा, इतनी जगह नहीं है यहाँ पे। जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाऊंगा। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर में दो नाइट्रोजन है, फिर से रखूंगा यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन है। उसके बाद मैं मॉडिफिकेशन उसकी करूंगा। पहले वाली जो दो ऑक्सीजन है मैं उनको ऐसे ही रखूंगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इनको मैं ऐसे ही रखूंगा जिस तरीके से पहले मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन रखा, अब यहाँ पे मैंने एक NH2 को रिप्लेस किया, वहां पे ऑक्सीजन डाला, यहाँ पे मैं वही ऑक्सीजन रखूंगा और ये ऑक्सीजन वही इसी तरीके से रखूंगा। और उसके बाद ये यहाँ पे हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को भी ऐसे रखूंगा, यहाँ पे नाइट्रोजन था उसके साथ अटैचमेंट X की थी वो भी ऐसे रखूंगा। लेकिन यहाँ पे दिस इज ये भी, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं। अब जो चेंज होती है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में वो कहाँ पे होती है, वो यहाँ पे होती है। यहाँ पे अटैचमेंट होती है CH3 की, यहाँ पे CH3 अटैच, ठीक है। जब यहाँ पे CH3 अटैच होता है लेकिन डबल बॉन्ड वैसे ही रहे, उसके बाद क्या होता है इस स्ट्रक्चर में, जब this is the next third structure, that was the first structure, second structure, and this is the third structure. When this X is equal to H, then it is known as thiamine. And when the short form of the thiamine is THY and the symbol is T. After that, when the X is ribose, then it is known as thymidine. The short form is THD and the symbol is T. When the X is ribose phosphate, then it is known as thymidinic acid. Thymidinic acid or thymidine monophosphate. The short form is TMP. Thymidine monophosphate. उसके बाद मैं इस हर एक साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन जो होता है उसके हम कॉमन नेम बताएंगे। कॉमन नेम कैसे हम देंगे, कॉमन नेम इसका क्या होता है, दैट इज हम देखिए फिर से यहाँ पे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 या सॉरी नंबर 1 दैट इज नाइट्रोजन, नंबर 2 पे क्या है ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज नंबर 2 पे क्या है ऑक्सीजन है, मैं सीधे लिखूंगा 2 ऑक्सो। उसके बाद क्या होता है नंबर 6 क्या है, नंबर किस पे 4 पे क्या है दैट इज अमीनो, 4 अमीनो। बेस क्या है सिंपली दैट इज पायरिमिडीन है। दैट इज 2 ऑक्सो 4 अमीनो पायरिमिड। दैट इज सिंपली जो यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज पायरिमिडीन, दैट इज 2 ऑक्सो 4 अमीनो पायरिमिडीन। उसके बाद अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर पे जाएंगे दैट इज यूरासिल। यूरासिल का दूसरा नाम क्या हो सकता है, फिर से जाएंगे दैट इज 1 एंड 2। 2 पे क्या है ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन किस पे है 4 पे, हम लिखेंगे 2,4 डाइऑक्सो और उसके बाद क्या है कुछ नहीं है डाइऑक्सो पायरिमिडीन। एंड फाइनली लास्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 1 है 2 है, किस पे है 2 पे है 4 पे है ऑक्सो ग्रुप है, डाइऑक्सो 2 ऑक्सीजन है और 1 है यहाँ पे मीथाइल ग्रुप, वो किस पे है दैट इज नंबर 5 है। यहाँ पे लिखेंगे 5 मीथाइल pyrimidine. And this was about the general structure of the pyrimides and purities. And हमने यहाँ पे आज देखा न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर देखा है, दैट इज प्यूरिटीज देखी है, पायरिमिडीज देखी है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट सेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज।